Assalamu alaikum, Hira. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. Thank you for inviting me. I'm pretty much sure we both are aligned. The main reason of having this session is just to get as much knowledge as we can from industry professional with respect to Definitely. कि वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं with regards to कि now a lot of things like AI आ रहा है and then there are a lot of different things going around. So just to have an idea कि industry professionals का क्या सोचना है उस बारे में and how they are going with overall their experience and their expertise. So before we start the session, I really want you if you can introduce to the audience. I'm pretty much sure a lot of people know you on LinkedIn. Just for the audience, what's going on, how's everything? So then we can start with it. Yes, definitely. My name is Sarah Akhtar. I have experience of more than 10 plus years in corporate sector. I have worked in multiple domains, started my career from customer services during my studies, and then I jumped to training and then retail, distribution, and B2B supply chain. And now eventually I am working in an organization who is basically dealing in cybersecurity, addressing human risks, which is the need of time right now. And mostly, AI is coming, and AI ke saath saath ye cheezein, or this topic has been, as we already decided, that AI को सामने रखते हुए हमने सब डिस्कशंस करनी है. So addressing human risk is the most you can say hot discussing element these days. All the organizations are working on it, how to control their phishing attacks, ransomwares, and all. So this is all about my experience that I have jumped from telco to cybersecurity company solution provider who are dealing in globally worldwide in Middle East, KSA, Qatar, Oman, Egypt, and now in UK as well. So I'm there handling their partner channel and till now working there. Perfect, perfect. I think that's compile a lot of things because you have experience in different for different countries because हर country के dynamics बहुत अलग होता है. ठीक है, and as you just highlighted, now you are working in a company that's work with the cyber security and now as we see कि अब आगे चल के AI बहुत ज़्यादा आ रहा है. Now we need to understand the fact कि सिक्योरिटी की भी इतनी ज़रूरत है क्योंकि एज़ सून एज़ फिनटेक एंड दूसरी ऐप्स जहाँ पे आपका पर्सनल डाटा होता है, मनी होती है इंक्लूड, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी भी होता है कि यार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ज़्यादा फॉलो किए जाएँ, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि उसी स्पीड से आगे बढ़े बट a lot of other countries are more likely advanced in the field of AI and all because they are experiencing that, applying those things. Pakistan is also doing that thing, so it's good to have that. I'm pretty much sure we are gonna have a very interesting session. To start it off, let's start with like as you say that you started with like customer service and then slowly gradually going up and then you see a lot of change in like different medium like अगर आप कस्टमर सर्विस की बात करें तो वो एक अलग फील्ड है नाउ जो अभी आप कह रहे हो वो बहुत अलग फील्ड है आई वांटेड टू आस्क हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक है अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ आज से 10 साल पहले की, ठीक है 6-7 साल पहले की मार्केट वाज नॉट दैट व्हाट आई से तेज ठीक है usually people prefer to have a job in big companies and they don't like to switch as much they try to experience that क्योंकि उनको वहीं पे ग्रोथ मिल रही होती थी और ये इसमें दो तरीके की बहस हो जाती है एक 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 वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर हमें ग्रोथ एक कंपनी में मिल रही है व्हाई वी नीड टू स्विच दैट एंड देन देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल हु थिंक दैट jumping to another company or another country might help you to success like might help you to get more success in overall growth of your professional career. So how was your overall experience what you are seeing here back in the days how things were like how things are now and what are the key factors that students especially student need to realize before they starting their career. A lot of people usually think यार जहाँ हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा हम वहाँ चले जाते हैं and what we are seeing right now we are seeing that a startup boom in the last 5 years. A lot of startups are coming, fintech बन रहा है, but उसमें हो ये रहा है कि a lot of companies are coming, but उसमें reliability is like 50-50.
some company survive that thing in Pakistan, some company don't. So हो सकता है कि आप किसी बड़ी स्टार्टअप को देख के उसमें चले जाते हैं, 2 साल बाद वो बंद हो जाता है, ठीक है? देन यू बिकम टू लाइक स्क्वायर वन, देन यू नीड टू स्टार्ट अगेन। सो व्हाट्स योर ओवरऑल एक्सपीरियंस लुक लाइक? क्या देख रहे हो? पहले क्या अलग था, अब क्या अलग था? डायनामिक्स कैसे चेंज हो रही है और स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर दे स्टार्ट देयर प्रोफेशनल करियर? See, time is evolving, every second moment time is evolving. It's very important to keep your checks on, keep your reflexes on. So if I talk about myself, my experience, तो मैंने almost I have spent almost 10 years in one organization. So it was not like कि मैं comfort zone में थी, or I was like I never thought to jump into any other, switch to any other company. It was like experience मुझे मिल रहा था. I have worked in multiple domains, as I have told you, and my actually personal aim was like I have to work in each and every department. I have to break the barriers कि females जो हैं वो sales में काम नहीं कर सकती. Actually, if working in sales is not something a challenge for a female. It's a strength basically. So, keeping in view that thing, I have worked in many domains. So, I just have learned कि organization छोटी हो या बड़ी हो, or there should be learning. From each and every place you learn something. So, keeping in view your careers, no नए लोग जो हैं उनको अगर मैं यही advice करूँगी, wherever they are, they should focus on few things. Number one is their persona building, and number two is that how they perceive, how their learning system, they're learning learning from their environments, learning from their current jobs, learning from their current universities, institutions, everywhere, learning from homes, their parents, their family. So learning should be always, they should keep open their doors for learning things. Learning is most important thing. And secondly, their personal grooming, and which is more important thing. Grooming is not it's not a vanity. It's something that it's a power of how you reflect yourself in front of people. So this is a basic tool basically. आपको अपनी जो grooming है वो grooming is, or it's, or you should develop your own signature style. Either it's scent, it's your personality, it's your speaking style, it's your like everything it includes in this thing. Your mindset, your thought process. You reflect your personality. This is how you propagate in your career, in your day life, in your modern day life, in everywhere. So this is something very important that you have to take care. Your grooming thing. Totally agree with Learning quite. totally agree with your Yeah. point कि it's not just about experiencing, it's also about getting opportunities. As you highlighted that you spend like almost a decade in a company and trying to like get as much knowledge as we can, because not it's not about like working in a specific role. If your role changes, maybe your problems and your challenges change, and you need to understand the fact. उससे फायदा ये होता है कि आप एक पूरे डायनामिक्स को जान रहे होते हैं कि कंपनी हो सकता है सेल्स किस तरीके से कर रही है, उसी जगह मार्केटिंग किस तरीके से कर रही है, और उस बिल्कुल उसके डिफरेंट मीडियम्स हैं। अभी आपने कुछ चीजें बताई, उसमें से एक चीज ये थी कि आपने कहा कि what I'm seeing right now, a lot of female entrepreneur, a lot of female now are working, and I'm always a fan of of those girls, of those women who are working, not to make just like not to help their family. It's about कि यार आप अ, खुद की भी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए. What I personally believe कि जब आप अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट करते हैं, 4-4 साल डिग्री में लगाते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, टोटल स्पेंड लाइक 6-7 साल, हाफ अ डेकेड आप अपने ऊपर लगाते हैं, तो अच्छा होता है कि आप उससे एक्सपीरियंस भी हासिल करें। अब अगर मैं इसको देखूँ तो शायद अब रिक्वायरमेंट हो चुकी है, क्योंकि नाउअडेज़ वी आर सीइंग दैट इफ बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग, दे कैन सक्सेस इन अ सर्टेन वे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, प्रॉब्लम्स नहीं होती। मुझे ये बताइएगा कि डू यू सी एनी डिफरेंस बैक देन व्हेन यू स्टार्टेड? बिकॉज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव, आज से शायद 5-6 साल पहले
इट्स नॉट, अगर मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोग शायद इसको सही नहीं समझते थे। एंड वी डू हैव दैट जी, जी। माइंडसेट एज़ वेल कि यार औरतें हैं, काम क्यों कर रही हैं, मर्दों को काम करना चाहिए। वी आर सीइंग लाइक, अगर आज से 5 साल या 10 साल पहले की बात करूँ तो कंपनीज़ की लीडरशिप में औरतें नहीं होती थी। नाउ कंपनीज़ आर आल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट कि यार हमारे लीडरशिप हुँ, में भी औरतें हों, हमारी कंपनी के अंदर इक्वालिटी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि सिर्फ़ लड़के ही हैं, लड़कियाँ नहीं हो, ठीक है? और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि लड़कियाँ भी सारे काम कर सकती हैं, विद रिस्पेक्ट टू के वो एक अलग बात है कि अब कोई उसमें ये कंप्लेन करे कि भई मज़दूरों वाला काम क्यों नहीं कर रही? दैट्स नॉट द डिबेटेबल टॉपिक। द पॉइंट इज़ कि लड़कियाँ भी ग्रो कर रही हैं, ठीक है? सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ इट कि यार do you see this challenge in your entire career? If you see how you tackle that thing, and I'm pretty much sure a lot of girls nowadays also see that thing. How they wanted to tackle that thing of mentality of कि यार आप लड़कियां हो, आप तो काम नहीं कर सकती, you can't grow. मैं देख रहा होता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे कोई लड़की अपनी ग्रोथ के बारे में कुछ लिख दे कि भाई आई वर्क दैट थिंग एंड नाउ आई एम गेटिंग अ कार फ्रॉम अ कंपनी और मे बी एनी इंसेंटिव, तो उसके नीचे हेटर कमेंट्स बहुत होते हैं। सो हाउ यू सी दैट थिंग, हाउ यू थिंक यार ये किस तरीके से चेंज हो सकती है, या चेंज हुई है या नहीं हुई है? Yes, there is a lot of change right now. It's a paradigm shift basically. Uh, since my time, जब मैंने start किया था, I did my MBA and during that it was really इस तरह का कोई वो फीमेल्स के काम करने को इतना इनकरेज भी नहीं किया जाता था। इवन नॉट इन इवन इन फैमिली लाइक फैमिलीज में भी कहा जाता था कि क्या पढ़ना है, बस ठीक है बीए कर लो, शादी हो जाएगी एंड देन इट्स हुँ। फाइन। But obviously, Tabbi girls were passionate at that time as well. I was also very passionate. I wanted to work somewhere. I wanted to grow. So I took a challenge as well in my family also because I had different sort of thinking that I was thinking कि लड़कियों को काम करना चाहिए शादी के बाद भी आपको इक्वली हस्बैंड के साथ अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम होता है अपने एक पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है एक इक्वल आप आते हैं उसके अंदर सो इट्स लाइक फॉर मी इफ आई थिंक ऑब्वियसली मेरे टाइम पे भी बहुत चैलेंजेस थे एंड यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब हम लोग काम करना स्टार्ट हुए थे तब इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर्स भी बहुत कम थे हुँ, बहुत बैरियर्स होते थे लाइक हायरिंग फीमेल एंड हायरिंग अ मैन मेल इट वाज अ बिग क्लैश मतलब वो क्लैश भी ना कहलें उसको आप ये कहें कि कंपटीशन होता था बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता था एंड पीपल would like to prefer कि मेल ही hiring home for the reason like जैसे सेल्स में दे से कि फीमेल्स आर नॉट सेल्स मैनेजर मटेरियल दे कैन नॉट हैंडल सेल्स बी बी टू बी में कहा जाता था कि बहुत मुश्किल हो जाता है चाहे टारगेट्स होते हैं बैंक्स में टारगेट्स होते हैं लाइक बाहर ऑर्गेनाइजेशन में दे वांटेड टू से एक ही एक्सक्यूज होता था कि फीमेल्स को बस बैक एंड जॉब ऑपरेशंस जॉब में रख लेते हैं दे कैन नॉट बी सूटेबल फॉर फ्रंट एंड लाइक फ्रंट एंड में भी आप कस्टमर सर्विसेज में फीमेल्स को बिठा सकते हैं but other than that they cannot handle they are not that much competent competency issues को भी बहुत कहा जाता था उस वक्त भी कि कॉम्पिटेंट कम होते हैं या कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है तो डर जाते हैं या इस तरह की चीज़ें भी कहते थे लोग उस वक्त भी but still obviously now the time has been changed a lot of multinational companies are working over here in Pakistan they have entered so people are going abroad as well. They are working abroad. Girls, talking about girls, they are studying here. They are going abroad for jobs as well. अब अब तो माशाल्लाह से लिंक्डइन के ऊपर देयर आर सो मेनी मीडियम्स लाइक वी अप्लाई ऑनलाइन अब पहले ये वाला भी ट्रेंड बहुत कम था लाइक ऑनलाइन हम लोग बहुत कम हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती थी हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह ये तो कोविड के बाद ये सब चीज़ें जो हैं बहुत फ्लो में आई हैं दैट ऑनलाइन कॉल्स होना शुरू हो गई कनेक्शंस होना शुरू हो गए ज़ूम कॉल्स होना शुरू हो गई बिफोर दैट इंटरव्यूज वर सपोज टू बी in person only so there were very few interviews that happens online वो इतने authentic माने ही नहीं जाते थे उनको so talking बिल्कुल, about बिल बि present बिल्कुल आप मैं एग्री करता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई एम टोटली एग्री विद योर पॉइंट कि जो आपने भी बोला है कि इट इज़ अ मिथ। पहले तो टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट आई पर्सनली बिलीव कोई कंपैरिज़न ही नहीं था, ठीक है? नॉट ओनली इन सेल्स, अगर मैं सेल्स की बात ना भी करूँ, अगर हम
कोई भी ऐसी फ़ील्ड लेते हैं, ठीक है? जिसमें हमें ये सिखाया जाता था कि नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, ये लड़कियाँ नहीं कर सकती, ठीक है? तो टोटली एग्री विद योर पॉइंट। अभी आपने एक चीज़ हाइलाइट करी है मीडियम्स। नाउ वी इन 2025 व्हाट आई पर्सनली से कि आज से 1-2 साल पहले नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि you can't be a slave of of one company. You need to have your personal personality or personal profile or professional overview जिससे आपको पता हो कि यार who is फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करूँ हु इज हिरा अख्तर सेपरेटली नॉट नॉट अबाउट कि यार उनसे उनकी कंपनी की वजह से उनको जानते हो लोग या उनकी पोजीशन की वजह से जानते हो ठीक है एंड वी आर सीइंग अ बूम for last 3 years a lot of people are now coming on a platform like in LinkedIn especially and they're trying to make their own profile not to get clients sometimes it's about कि यार आप बहुत सारी चीजों में पहले ही मैं देख रहा होता था कि लोग जाते थे आप 9 बजे ऑफिस गए 5 बजे तक काम करा घर आए दैट्स Traditional working style इट था एक now what I'm seeing is people are trying to make connection building people are trying to connect with industry professional क्योंकि ये बात है कि जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो आपको दूसरों के साथ देखना होता है कि कौन-सी कंपनी क्या कह रही है, इवन कौन-सी अक्रॉस इंडस्ट्रीज भी अक्रॉस ग्लोब भी और अब एक्सपोजर बहुत मिल रहा है अब व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं यू कैन जॉइन वेरी गुड व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल लिंक्डइन के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इसके अलावा रिक्रूटिंग कंपनीज आ गई हैं कंसल्टेंसी देती हैं आपको जॉब कंसल्टेंट्स मिल जाते हैं जो आपको गाइड करते हैं हाउ टू अप्लाई रेज्यूमे मेकर्स मिल जाते हैं आपको जो आपको रेज्यूमे बनाने में गाइड कर रहे होते हैं so now things have been ट्रांसफॉर्म्ड आई कैन से और ट्रांसफॉर्म्ड पॉजिटिवली भी हैं थोड़े नेगेटिवली भी हैं लाइक हम थोड़े कंफर्ट जोन में भी आ गए हम मेहनत कम करते हैं पहले हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस इंटरव्यू प्रिपरेशंस और वो बहुत चल रही होती थी पॉइंट्स बनाने पॉइंटर्स के साथ सो वो चीज़ें भी होती थी लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है उसने आपको और ज़्यादा आपको चीज़ें हेल्पफुल हो गई हैं चीज़ें आपके लिए और गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा मिल रही हैं अब हर जगह से आपको गाइडलाइंस मिल जाती हैं इवन चैट जीपीटी कैन गाइड यू डीप सीक कैन गाइड यू so there are multiple things the sky is the limit for everybody not for male or only not for females only, for everyone, whoever wants to grow in life, whoever wants to, reach somewhere और become something और कोई अपना कोई लाइफ का उन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव रखा होता है तो ऑब्वियसली anyone can at least can chase their targets टोटली of एग्री course at least करते हैं ना हम उसके लिए फिर बिल्कुल, बिल्कुल, टोटली एग्री विद योर पॉइंट कि थिंग्स आर लाइक हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव तो हैं, ठीक है? आई टोटली गेट योर पॉइंट कि एआई ने या टेक्नोलॉजी ने थोड़ा-सा सेटबैक दिया है। अब मैं देख रहा होता हूँ कि लोगों को हर चीज़ जो है वो होम डिलीवरी चाहिए होती है। लोग चाहते हैं कि चीज़ें ईज़ पर हो जाए, ठीक है? आफ्टर कोरोना व्हाट वी आल्सो फेस इज़ के लोगों ने इस वे ऑफ बिहेवियर को समझा कि हम घर से बैठ के भी काम कर सकते हैं। दिस रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट जो और मैं अगर पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करूँ तो पाकिस्तान से शायद उससे Yes. अभी तक बाहर ही नहीं आ पा रहा है। पाकिस्तान में अभी भी लोगों को लग रहा है कि इट्स 2020 और 2019 कोरोना का फेज़ चल रहा है एंड दे आर स्टिल लूकिंग फॉर अपॉर्च्युनिटीज़ कि यार हम पाक घर से बैठ के ही काम करें। work from That remote opportunity. that comes to another point कि I see कि nowadays Yes, sorry to cut you. We already discussed that sorry you were stuck. You were saying something? I was just saying that as we already discussed that uh, अब चीज़ों में एक पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत रोल है, अपना पर्सनल अपीयरेंस, अपना बिहेवियर, इन सब चीज़ों के ऊपर ओवरशैडो कर रहे हैं आजकल राइट नाउ बिकॉज़ कॉम्पिटिशन इज़ मोर देन बिफोर पहले शायद 100 लोग होते थे, नाउ वी आर कंपीटिंग 1000, 10,000 और 10 लाख पीपल राइट नाउ. Even when we go to apply for any job on LinkedIn, we see that already 900 people have already applied on for this job. So the competition is more even in everything, every field of life, there is a competition. So for that competition, to cope up that competition, we have to act very maturely. Like we have to be very much realistic. But we are
we do offline, we have to, look like we have to match our online as well. Like जो भी हमारी जिन लोगों से हम डील करते हैं, हमारी जिन कंपनीज के साथ डीलिंग होती है, हमारी मीटिंग्स होती हैं, एक्सपोयर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, और with whoever we deal in daily life, it reflects on our personality as well. Persona building is like something, I think, mere liye, if I talk about myself, it's very, very important that uh, one should take care of, first take care of their persona building. अपने आप को किस तरह से प्रेज़ेंट करना है दुनिया के सामने, लोगों के सामने, अपने बॉसेस के सामने, अपनी फैमिली के सामने, दैट शुड बी अ रोल मॉडल। बिकम अ रोल मॉडल फॉर योरसेल्फ, फॉर योर ओन सेल्फ एक्चुअली। मेंटर बनें अपना, और अपनी पॉज़िटिविटी, पॉज़िटिव लोगों पॉज़िटिव जो आपके अंदर जो पॉज़िटिव ट्रेट्स हैं, उनको बाहर लाएँ, दुनिया को दिखाएँ, बताएँ कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, उनको लोगों के सामने प्रेज़ेंट करें। That's the actually key weapon for us to present ourselves. लोगों को पता चले कि हमारी क्या एबिलिटीज़ हैं, rather than telling everybody that मेरी ये वीकनेसेस हैं, मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, मेरी ये रिजर्वेशंस हैं, मुझे इस चीज़ में ये डर लग रहा है। So tell them about your strengths as well. So that's more important basically. बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। एक और चीज़ होती है हिरा, उस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि रोड मैप। नाउअडेज़ व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि यूनिवर्सिटीज़ में तो हमें रोड मैप मिल जाता है, ठीक है? एंड इफ अगर मैं इसको उस तरीके से देखूँ कि हम अभी भी वो जनरेशन है जहाँ पे 26-27 साल तक लड़का हो या लड़की हो, वो अपने माँ-बाप के साथ, माँ-बाप उसके सारे एक्सपेंसेस उठा रहे होते हैं, और 26 साल बाद या 25 साल बाद या 24 साल बाद, व्हाटएवर एज दे ग्रेजुएट, उनको एक झटका मिलता है कि यार दिस इज़ अ वेरी टोटली डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है? हुँ, हमने जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है वो थोड़ा अलग है, जो रियल लाइफ एनवायरनमेंट है वो बहुत अलग है। ठीक है, हमें रोड मैप दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में कि ठीक है भाई, आपने ये कोर्सेज़ करने हैं एंड देन यू कैन ग्रेजुएट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक और मसला आ जाता है कि लोग अपना आफ्टर यूनिवर्सिटी रोड मैप नहीं बना पाते। पीपल यूजुअली डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जितना पहले आप स्टार्ट करेंगे उतना उन आपके लिए हेल्प आउट हुँ, करेगा। व्हाट आई सी इज़ कि आई थिंक जब आपने स्टार्ट करा होगा, या अगर मैं 5-6 साल पहले की बात करता हूँ, तो तब ये एमटीयू प्रोग्राम्स, तब ये इतनी इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें या इतनी ये इतने आराम से नहीं मिल रही थी, और आपको आपको पता ही नहीं चलता था, और अगर होती भी थी क्योंकि सोशल मीडिया इतना था, प्रिंसिपल नहीं होती थी। सोशल मीडिया नहीं था। आई आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जहाँ पे माय चाचू और माय मामू वर लाइक, न्यूज़पेपर देखो यार, न्यूज़पेपर में कोई जॉब का ऐड आया होगा, और फिर आप उसको मार्क करके उसका लिखते थे कि यार इस जगह मुझे जाना है इस दिन, और इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। व्हाट डू यू से, जैसा अगर आपने अभी बोला कि हिरा कि आपको अपना मेंटोर चाहिए। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि पीपल यूजुअली हैव मेंटोर्स, बट वो मेंटोर्स उनको ये समझ में नहीं आता कि वो स्पेसिफिकली किस फील्ड है, ठीक है? अगर मैं कहता हूँ कि यार अगर मुझे फॉर एग्जांपल सेल्स में कुछ सीखना है, तो व्हाई आई एम वेटिंग फॉर कि यार मैं ग्रेजुएट होऊँगा, कहीं पे जॉब करूँगा, वहाँ पे सीखूँगा, फिर 10 साल लगाऊँगा। ठीक है, व्हाई डोंट वी कनेक्ट विद पीपल, जैसा भी आपने बताया कि यार अब मीडियम इतने ज़्यादा आ गए, आई डोंट थिंक सो कि अगर आप किसी को सही तरीके से रीच आउट करें, आई थिंक एवरीवन इज़ ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर, बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट Yes, I totally believe that. I totally believe. Sorry, I totally believe that networking is your accelerator. Basically, the more you network with different kinds of people, more you learn from them. So this is very important. Networking is very, very important. If you want to learn something, you need to act with different kind of people. You have to deal with different kind of people. Networking ही help करती है इस चीज़ में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है मेरा कि ये बड़ा ऐसा हो जाता है कि आई थिंक आपने भी ये चीज़ को देखा होगा कि एक चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जॉब को हॉप करके दूसरी जॉब पर जाते हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है ये डायनामिक्स टू डायनामिक्स डिपेंड करता है। पाकिस्तान में अब जाके ये ट्रेंड आ गया कि ठीक है भाई, 2 साल काम कर लिया, कहीं पे जॉब इंटरव्यू देते हैं, तो आपको तकरीबन 40 30, 40, 50% का हाइक कभी-कभार मिल जाता है, ठीक है? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता। अब यूजुअली लोगों को जॉब इसलिए चेंज करनी पड़ती है क्योंकि आपके इंक्रीमेंट इतने होते नहीं। पाकिस्तान में मैं देख रहा होता हूँ कि इंक्रीमेंट हो रहे हैं भाई, आपके 20% इंक्रीमेंट हो गया, आपका आपका 30% इंक्रीमेंट हो गया।
क्योंकि वो अलग बात है कि 20% इंक्रीमेंट होता है तो 30% की इन्फ्लेशन आ जाती है, तो 20% आपका पूरा हो जाता है। as you told me that you invested your 10 years in a company, ठीक है? और जब आप एक ही कंपनी में अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो एक तो आपकी ग्रोथ हो गई टुवर्ड्स कि आप नए-नए एक्सपीरियंस देख रहे हैं। बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि उसमें भी आपको ये देखना होता है कि यार what sort of positive things I'm getting in terms of money, in terms of percentage, in terms of क्या कहते हैं आप उनको कि perks and benefits क्या हैं। तो व्हाट्स योर थॉट ऑन इट कि अगर आप कहीं पे स्विच कर रहे हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए राइट नाउ इन 2025 क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? डू यू थिंक कि आपको मनी के मतलब पैसों के पीछे जाना चाहिए या आप अपनी ग्रोथ देखें? व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए इंसान का? सो आपकी 2 बातें हैं आई विल आंसर। फर्स्ट वाज़ रोड मैप। यू ऑलरेडी डिस्कस्ड कि रोड मैप नहीं है आजकल। और आई टोटली बिलीव बीइंग मुस्लिम यू कैन से आई टोटली बिलीव दैट अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, राइट? सो प्लानिंग करनी चाहिए, लाइफ में प्लानिंग होनी ही चाहिए। एक रोड मैप जब हम कहीं किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में व्हेन वी आर वर्किंग, तो हमारे हर जब परफॉर्मेंस अप्रेज़ल हो रही होती है, तो हमारे जो मैनेजर होते हैं, वो हमको ये कह रहे होते हैं कि जी आपका एक करियर पाथ हमने डिसाइड किया हुआ है, ये दिस इज़ योर करियर पाथ। सो दैट करियर पाथ सेज़ व्हाट? दैट करियर पाथ सेज़ नथिंग, दिस इज़ अपॉन योर ओन चॉइस वेयर यू हैव डायरेक्शन, which direction you want to go. Either you want to stay here, either you want to, आप अपने मैनेजर को कह सकते हैं कि मुझे रोटेट करें, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजें, या मैं आप इधर-उधर अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, आप एग्रेसिवली अप्लाई करते हैं, और इस तरह की और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर आप काम कर सकते हैं। सेकेंडली, जब आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे होते हैं, तो आप देख रहे होते हैं कि आपने ग्रो किस तरह करना है। आपने फाइनेंशियली ग्रो करना है, या आपने पर्सनैलिटी वाइज़ और लाइक आपने मॉरली ग्रो करना है, लर्निंग वाइज़ ग्रो करना है। आपकी अपनी चॉइस होती है। वन शुड चूज़ देयर पाथ themselves. So if we talk about you know talking about finding opportunities, हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई प्रेफर्ड सो मैनी थिंग्स। माई पर्सनल लाइफ, उसको भी हमने देखना होता है, वर्क लाइफ बैलेंस को भी देखना होता है। इफ आई एम मैरिड, आई हैव किड्स, बीइंग फीमेल, आई हैव टू सी माई हाउस थिंग्स एज वेल। हाउस कीपिंग की भी चीज़ें होती हैं, बच्चों की चीज़ें होती हैं, फैमिली की चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स की चीज़ें होती हैं। सो मेनी फैक्टर्स। सो टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, ग्रोथ आपकी 2 तरह की होती है, एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिज़ॉन्टल होती है। सो इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। सम टाइम आपके लिए कंट्रोलेबल भी नहीं होती, कुछ फैक्टर्स होते हैं, आप एक अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन में हैं, वहाँ पे वर्टिकल ग्रोथ नहीं हो रही, हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ है। लाइक मी, आई हैव वर्क्ड इन मल्टीपल डोमेन्स, क्योंकि मुझे वहाँ पे वर्टिकल ग्रोथ का एलिमेंट जो है, वो स्पैन जो है, वो स्कोप जो कह लें आप, वो बहुत कम है। लाइक अगर 10 लोग हैं, तो 10 में से 1 बंदे ने, या 100 लोगों की बात करें अगर हम, आउट ऑफ 100, 1 विल बी प्रमोटेड एज़ अ मैनेजर। सो रेस्ट ऑफ पीपल हैव टू वर्क अंडर हिम। तो उनका एक हायरार्की प्लान होता है, उनका एक सेल्स मॉडल, या एक जो भी उनका हर डिपार्टमेंट का होता है, उनका एक प्लान होता है। उसके अकॉर्डिंगली दे प्रमोट पीपल, दे ग्रो पीपल। सो टॉकिंग अबाउट कीपिंग these एलिमेंट्स, these all factors in keeping in your view, if you talk about growth, growth is not only that you have to promote as a manager, then director, then VP. It's about horizontal as well. आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करें, लर्निंग करें, आपका एक पोर्टफोलियो बनता है, देन यू जंप टू एनी अदर कंट्री और एनी अदर जॉब और एनीवेयर, लाइक उसी उसी कंपनी में ही आपकी एक वर्थ बनती है, आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। पीपल स्टार्ट नोइंग यू दैट दिस गर्ल और दिस बॉय हैज वर्कड इन दिस डिपार्टमेंट। सो वो एक पोर्टफोलियो आपका प्रॉपर एक जनरेट होना शुरू हो जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पोर्टफोलियो यू स्टार्ट ग्रोइंग अप। सो टॉकिंग अबाउट मॉडर्न फैक्टर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जितनी हो रही है, इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारी इंक्रीमेंट्स उस तरह से नहीं हो रही हैं। सो साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल रही होती हैं। सो इफ़ वी लर्न एज पर राइट डिमांड एट दिस टाइम, हमें जैसे एआई के ऊपर कोई कोर्सेज़ करें हम बैठ के ऑनलाइन, को वो गूगल ने बहुत ज़्यादा सर्टिफ़िकेशंस दे दी हैं। कोसेरा पे बहुत ज़्यादा है, लिंक्डइन पे आप फ्री कर सकते हैं, कोई कोर्सेज़ हैं वो आप करें।
Like I also do right now whenever I get time, I used to do my LinkedIn courses. मुझे अच्छे courses वहाँ से नज़र आते हैं जो trending भी होते हैं. I always prefer to do that. So these are some key factors that we can, we can always ये हमारे कुछ helpful tools भी हो जाते हैं जो हमें help करते हैं to excel in life, to excel in our professional life as well, कि हम थोड़ा अपने आप को पॉलिश करें और अपने आप को एट पार करें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ट्रेंड्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बीइंग मिलेनियल आई हैव टू वर्क एट पार विद जेन ज़ी एज़ वेल. सो वो भी एक गैप होता है. सो उस गैप को भी हमने मीट अप करना होता है. उस गैप को हम इसी तरह मीट अप करते हैं जब हम मॉडर्न डिमांड्स के ऊपर, लेटेस्ट कोर्सेज़ के ऊपर अपना कुछ हैंड्स ऑन नॉलेज लेते हैं और हम बताते हैं कि वी आर आल्सो वर्किंग पैरेलल विद यू गाइस. दैट्स बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ज़रूरी नहीं है ये आपने बात जो कही बिल्कुल ठीक है कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट कि यार हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। इट्स अबाउट लर्निंग द फैक्टर्स कि आप ज़रूरी नहीं है कि अगर जेन ज़ी बिकॉज़ यू नीड टू वर्क विद देम नो मैटर व्हाट। अब आने वाले टाइम में आप जिन लोगों को हायर करेंगे, कंपनीज़ जिन लोगों को हायर करेंगी, हो सकता है उनके पास करंट सिचुएशन की नॉलेज ज़्यादा हो, ठीक है? उनके उनके लिंगुअल्स या उनके बोलने का तरीका अलग हो, उनका समझने No, का तरीका actually, actually, to be very honest, we get very much judgmental very very soon. हम कहते हैं कि जी Gen Z जो है वो they are very they are very fast. Yes, they are fast. They have fast brains. उन्होंने पैदा होते साथ ही जो है वो टैब्स के साथ खेलना शुरू कर दिया है, मोबाइल्स के साथ खेलना शुरू कर दिया है, पबजी उन्होंने खेल ली है, फास्ट मूविंग गेम्स खेल ली हैं उन्होंने, एआई की गेम्स खेली हैं, हम लोगों ने वो गेम्स कहाँ बाद में सीखी हैं. सो टॉकिंग अबाउट लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन से कि ये कोई बुरी बात है, इसमें लर्निंग भी है. इफ जेन ज़ीज़ जो हैं वो अब लेटेस्ट जनरेशन है, वी शुड एनकरेज देम एज़ वेल. ऑफ कोर्स उनके पास लेटेस्ट एक अप्रोच है एंड उनके साथ मैच करना इज़ द आर्ट बेसिकली. वर्किंग विद देम, अलाइनिंग, कीपिंग योरसेल्फ अलाइन्ड विद देम. तो ऑब्वियसली एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन में गैप तो होता ही है और उस गैप को आपने कैसे मीट अप करना है उसके डिफरेंट तरीके होते हैं. सो आई थिंक मेरा अपना थॉट प्रोसेस ये है कि बिकॉज एआई हैज़ चेंज्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स. हम जो हमारे पुरानी थ्योरीज, जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स थे, वो एआई ने बिल्कुल उनको कंडेम करके नई थ्योरीज दे दी हैं, नए कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं, लर्निंग के न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जामिनेशंस के न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं. सो एवरीवेयर rather it's institution, educational institution or some working company. So हर जगह पे आपको जो है वो आपकी कॉन्सेप्ट्स चेंज हो गए हैं आप. So we have to align ourselves with them basically. So yes, you are right. Financial aspect is more important on this age because आपको you have to run our we all have to run our houses. हमें वो भी एक important aspect है हमारे लिए कि हमें अर्निंग भी अच्छी करनी है अपनी और उसके लिए दो ही फैक्टर होते हैं. आप आइदर यू इम्प्रूव योरसेल्फ, एट पार करें, लर्निंग अपनी बेहतर करें, अपने आप को एक्सेल अच्छा करें, अपना एक पर्सोना बिल्डिंग अच्छी करें, पोर्ट्रे योरसेल्फ as you are a good learner, you're a quick learner and you have some potential. आप किसी भी कंपनी में जाते हैं एचआर में, वो सबसे पहला सवाल अभी तक ट्रेडिशनल वही होता है कि टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ्स. सो वो स्ट्रेंथ्स जो आप पहले बताते थे, वो वाली स्ट्रेंथ्स और अब की स्ट्रेंथ्स में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. अब हम वो वाली बात नहीं करते कि आई एम गुड इन एक्सेल, आई एम गुड इन पावर पॉइंट, वो वाली चीज़ें नहीं बताएँगे. अब हम बताएँगे उनको कि हाउ आई कैन हेल्प विद हाउ आई कैन मेक प्रेज़ेंटेशंस विद चैट जीपीटी. मैं चैट जीपीटी पे कौन-कौन सी प्रॉम्प्ट्स को कर सकती हूँ, कौन-सी प्रॉम्प्ट देके मैं कौन से एनालिसिस बना सकती हूँ, हाउ आई कैन डू दैट. दिस इज़ व्हाट पीपल अम्यूज़ पीपल हू आर सिटिंग बिहाइंड द टेबल एंड हू आर टेकिंग आवर इंटरव्यूज़ और हायरिंग अस. तो वो वाली चीज़ें ही हैं जो हमारे हाथ में है, बाकी सब तो अल्लाह के हाथ में होता है. और जितना वो अल्लाह ताला ने आपके लिए हमारे लिए रिस्क लिखा हुआ है, वो हमें मिल जाता है, बट वी हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट थिंग. स्ट्रगल यही है कि हमें वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ विद दिस मॉडर्न नीड्स, मॉडर्न टाइम, एआई टाइम बेसिकली. सो यू सी अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, अरब कंट्रीज हैव डिक्लेयर्ड दैट दे आर एग्रेसिव अबाउट वर्किंग इन एआई. स्पेशली यूएई ने तो डिक्लेयर कर दिया. उनका तो फ्यूचर पे जितने भी यू रिच हैं. यूएई तो अलग ही मीडियम में जा रहा है यूएई का तो।
बस नहीं चलता, वो तो चाह रहा है कि हर चीज़ के अंदर एआई डाल दे, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? देखें Yeah, thrill thing as well. अगर Yes. अगर 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 एक कंट्री को ग्रो करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे ऐसा लगता है आगे जाके आपकी जीत और हार इसी चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर है, ठीक है? और हो सकता है कि लोगों का कहना सही हो कि यार अभी एआई इतना स्टेबल नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप अभी से आदत डालेंगे, तो 5-10 साल बाद जाके आप उस चीज़ को बेहतर कर पाएँगे। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान में हमेशा ये रहा कि हमने हमेशा एक ट्रेंड पीछे ही रहे। व्हाट आई सी के एनएफटीज़ आए, तो हम उसमें नहीं गए। जब एनएफटी खत्म हो गए, तो पाकिस्तानी एनएफटी में जाने लग गए। फिर वी हैव दिस क्रिप्टो बूम, ठीक है? और फिर क्रिप्टो में जब क्रिप्टो खत्म हुआ, तो हम क्रिप्टो की तरफ आने लगे। आई एम लुकिंग लाइक द सेम थिंग। हम एआई को भी उसी तरीके से शायद हल्के से उसमें ना मिस करेंगे, ठीक है? आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स हिरा। एक मुझे छोटी-सी आपसे बात और डिस्कस करनी है विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है? अ लॉट ऑफ पीपल नाउअडेज़ जो रिसेंटली स्टार्ट करते हैं, उनको ना यार ये बहुत मसला होता है कि यार हम फाइनेंशियली स्टेबल हों कैसे? ठीक है? और ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपनी बात करूँ, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करा था, तो मैं भी सोचता था यार कि हाउ माय डैड इज़ मैनेजिंग इन दैट अमाउंट। अगर मेरी और मेरे डैड की सेम सैलरी भी थी, सेम एज ग्रुप में, तो वो कैसे मैनेज कर पा रहे थे और मैं कैसे मैनेज नहीं कर पा रहा? ठीक है। व्हाट वी पर्सनली बिलीव कि हमारे यहाँ सेविंग्स, हमारे यहाँ किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं होती थी, ठीक है। आफ्टर अ व्हाइल यू स्टार्ट अज्यूमिंग द फैक्ट कि ठीक है यार, नाउ वी हैव टू टेक माय सैलरी इनटू 3 डिफरेंट फेजेस। एक मेरा एक्सपेंस है, एक मेरी सेविंग्स है और एक मेरी एक इमरजेंसी फंड्स है, हाँ, ठीक है। आई एम प्रीटी मच श्योर अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट। थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ, आपने थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस आर यू समवन लाइक द सेविंग साइड वाली, या ठीक है भाई जो है लेट्स डू इट टुडे, कल की कल देखेंगे? तो व्हाट्स योर ओवरऑल क्राइटेरिया? किस कोई एक 1-2 टिप अगर देना चाहें आप इस पे, दैट्स द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस टू द पीपल हू आर कमिंग इन द इंडस्ट्री, बिकॉज़ आपको पता नहीं होता कि पाकिस्तान के हालात को देख के क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर वो कोई बहुत बड़ी एमएनसी नहीं है, अभी वो खुली है, हो सकता है उसको फंडिंग मिली हो, कल को वो चीज़ बंद हो जाए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर थोड़ा-सा मुझे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप बताना चाहो, बस दैट्स द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस। yes, financial stability a key factor, most important thing being individual when we are working or we are studying. Of course, इस चीज़ को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि this is the main actual main player of our life basically. जब हम अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं, ये पहली मिथ ये थी कि विद टाइम, विद एज, विद मैच्योरिटी हम ठीक हो जाएँगे, देन वी स्टार्ट सेविंग एंड now the current ages, as I already told you, Gen Zs are very genius in this way. So if I give them advice, अगर मैं अपनी बात करूँ तो since I started working, I always keep one portion of my earning. It should be left aside, that and that should be known as my savings. So savings are always very important, even if you are single, even if you are married, if you have kids, family. सो सेविंग्स इज़ योर इमरजेंसी, एक आपका जो कोटा है वो होना है या होना चाहिए, और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसकी टिप क्या हो सकती है? उसकी टिप यही है कि हम अपने आप को कंट्रोल करें। वी शुड मैनेज आवर फंड्स प्लानिंग के साथ। ऑब्वियसली अपनी ग्रोसरीज़, अपनी जो भी स्पेंडिंग्स हैं, अपने जो भी हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, उसकी एक प्लान करते हैं। जब सैलरी आने से पहले हम प्लान कर चुके होते हैं कि हमने यहाँ बिल्कुल, स्पेंड कर, और वो ऑलरेडी स्पेंड हो चुका होता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड कि यहाँ-यहाँ ये लगा देना है। बट स्टिल उसमें से कुछ अमाउंट, बेशक वो थोड़ा 10% हो, 5% हो और 1% इवन, व्हाटएवर यू कैन कीप असाइड, you should keep that aside with the name of your emergency fund, with the name of your emergency saving, that should be there. वो वो थोड़े-थोड़े से भी कुछ ना कुछ अमाउंट बनती है, और वो एक आपकी हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट अमाउंट होती है। Which is very important. I would not say कि one should अगर मैं बात करूँ कि persona बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए आप महँगे-महँगे सेंट्स लेंगे, आप फ्रेग्रेंसेस लेंगे, ब्रांड्स लेंगे। सो
कम ऑन नाउ आई थिंक वी आर दैट मच मैच्योर कि हमें इस चीज़ से बाहर निकल आना चाहिए कि देयर इज़ अ वर्ल्ड विदाउट ब्रांड्स एज़ वेल, जो उन ब्रांड्स के बगैर भी चलती है और उससे कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल अबाउट यू। इफ यू कैन अफोर्ड दैट ईज़िली, गो फॉर ब्रांड्स। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड दोज़ ब्रांड्स और आपकी लाइफ़ जो है वो मिज़रेबल हो रही है, so then why to run after those brands? Think about your savings first. That matters more. तो ये जो हम क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर बहुत जल्दी जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और सम टाइम हम कोई महँगी-महँगी चीज़ें ऐसे एसेट्स बना लेते हैं जो एसेट्स नहीं होते बेसिकली, लेकिन हमें लग रहा होता है कि ये हमारे एसेट्स हैं। सो बाद में लेटली वी रियलाइज़ कि दीज़ आर नॉट एसेट्स, दे आर नॉट हेल्पिंग अस एनीमोर इन लाइफ लेटर ऑन। सो वो हमने ऐसे ही स्पेंड कर लिया था आउट ऑफ जोश में आके और व्हाटएवर, बट थिंक वाइज़ली। There should be one portion of your salary, one portion of your earning, whatever you earn. There should be one smaller portion of the salary that should be kept aside with the name of saving, which is very, very important. Perfect, perfect. I think Hera, we have discussed a lot of good things and I'm pretty much sure कि जब आप उस एक्सपीरियंस पर होते हो, उतने साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि यार अ, हमेशा चीज़ें जो है ना, जैसे अभी आपने ग्रोथ की बात करी, पीपल यूजुअली सी ग्रोथ इन अ वर्टिकल वे कि ठीक है भाई, आज मैं एसोसिएट हूँ, कल मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, मैनेजर, लीड, टीम लीड और मैं 10 साल बाद सीईओ होऊँगा। एंड ग्रोथ में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेशन हो, लेकिन जैसा आपने बोला कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में भी कोई फ़र्क मसला नहीं है। आप ग्रोथ इज़ मोर लाइकली कि आपको अच्छा लगना चाहिए जहाँ आप काम कर रहे हैं। आर यू गिविंग समथिंग? जब आप अपना टाइम लगवा रहे हैं, तो वो कंपनी या वो जगह जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपकी वर्थ क्या है वहाँ पे? आपको इसके अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? क्या वो कंपनी आपके अंदर कोई चेंज लेकर आ रही है, नहीं आ रही? सो दैट्स टोटली डिबेटेबल टॉपिक जो आपने बताया, बट thank you so much, Ira. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on this session and to discuss this awesome topic with you. I'm pretty much sure कि people will usually like जब वो देखेंगे इसको तो वो उससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे with respect to कि उनको ग्रोथ कैसे करनी है, with respect to कि अपनी अपनी ग्रोथ के साथ-साथ अगर उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी है तो वो क्या है, इट्स नॉट अबाउट बाइंग एक्सपेंसिव फ़ोन और बाइंग एक्सपेंसिव गैजेट्स बिकॉज़ दैट मे बी अबाउट योर लायबिलिटी। इट्स नॉट वर्थ इट बिकॉज़ यू आर राइट। लायबिलिटीज़ इकट्ठी करने में कोई मसला फ़ायदा नहीं होता। आफ्टर अ व्हाइल मे बी हर चीज़ पुरानी हो जाती है, गैजेट्स आर लाइक हर साल नया। बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमने जो है ना गलत जगह पे खर्च कर लिए हैं। वी रियलाइज़ वेरी सून दैट दिस इज़ लाइक दिस इज़ लाइक अ ह्यूमन नेचर ना, व्हाट आई सी इज़ कि हम दूसरों की फैंटेसी को देख के अपने आप को उस तरीके से देखना चाहते हैं। हमें लगता है कि इफ समवन इज़ इन अ गुड कार तो व्हाई नॉट मी? अ, बट द पॉइंट इज़ गेटिंग समथिंग ऑन कैश एंड गेटिंग समथिंग ऑन क्रेडिट कार्ड जैसे दैट यू आर सेइंग इज़ अ वेरी टोटल डिफरेंट थिंग। और फिर आपको उसमें एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ज़्यादा होता है कि ठीक है यार, अब मेरे सर पे एक चीज़ है कि हर महीने मुझे इतने पैसे देने हैं। मेबी यू डोंट इन्वेस्ट ऑन दैट, मतलब यू डोंट बाय दैट थिंग और वो शायद आपकी सेविंग्स बनती रहती। तो totally agree with the points that we shared. I'm pretty much sure a lot of people will learn a lot of good things from you with this session. And thank you so much, Ira. Thank you so much for your time. थैंक यू It's फॉर nice. इनवाइटिंग मी। Thank you, Ji.